بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ پاکستان میں ٹرین ہوسٹیج کرائسس جاری ہے، فوج کا آپریشن بھی جاری ہے، لیکن خود کش حملہ آوروں کو تعینات کرنے اور ہوسٹیجز کو ڈھال بنانے کی وجہ سے فوج بہت احتیاط سے کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف یوکرین میں 30 دن کے ایک سیز فائر کا خاکہ منظور ہوا ہے، لیکن رشیا نے ابھی اشارہ نہیں دیا ہے کہ کیا وہ اسے قبول ہوگا۔ ان خبر کی تمام تفصیلات اور پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن C۔ پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقے دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ پاکستان میں ٹرین کرائسس جاری، 190 ہوسٹیجز کو چھڑایا گیا، 30 دہشت گرد ہلاک۔ بلوچ دہشت گردوں نے مسافروں کو انسانی ڈھال بنا دیا، خود کش حملہ آور بھی تعینات کر دیے، ویڈیو جاری۔ یوکرین نے 30 دن کے سیز فائر سے کیا اتفاق، امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی مدد بحال کی۔ فیصلہ امریکہ نہیں رشیا کرے گا، ماسکو کا سخت سٹینڈ، کہا بریفنگ کا انتظار ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو دھکا۔ امریکی نمائندے وٹکوف دوحہ پہنچے، قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات، غزہ جنگ بندی بات چیت جاری۔ اسرائیل نے غزہ میں 8 فلسطینی روزے داروں کو شہید کر دیا، جملہ شہادتیں 48,555۔ یمنیوں نے اسرائیلی جہازوں پر پھر سے پابندی لگا دی، غزہ کی مدد بحال کرنے کے لیے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ عرب ملک کے ذریعے خامنائی کو خط بھیج رہے ہیں، ایران نے پہلی مرتبہ کی تصدیق۔
इंडिया मॉरिशस ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक सतह पर ले जाने का फैसला, ग्लोबल साउथ के लिए मोदी ने विजन पेश किया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में ट्रेन पर हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अभी जारी है। अहदेदारों ने बताया कि अब तक 190 होस्टेजेस को छुड़ाया गया है और ऑपरेशन में 30 दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये हमला क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के इलाके में किया गया। अहदेदारों ने बताया कि 33 जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। सोर्सेस ने बताया कि दहशतगर्दों ने खुदकुश बम्बरदारों को होस्टेजेस के साथ बिठा दिया है और औरतों और बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम 3 जगहों पर खुदकुश बम्बरदारों ने औरतों और बच्चों को होस्टेज बनाकर रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फ़ौज ऑपरेशन में एहतियात बरत रही है। खुदकुश बम्बरदारों को तैनात करने से पाकिस्तान का होस्टेज क्राइसिस बहुत पेचीदा हो गया है। इस दौरान क्वेटा स्टेशन पर दर्जनों ताबूत पहुंचा दिए गए हैं। यह हमला बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लंबे अरसे से कार्रवाइयाँ कर रही है। बलूचिस्तान रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसकी आबादी सबसे कम है। बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरे अलहदगी पसंदों का कहना है कि वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान सूबे को उसका हिस्सा नहीं दिया जाता है। बलूचिस्तान अफगानिस्तान और ईरान की सरहद पर वाक़ है। पाकिस्तान रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि 3 दिनों तक जाफर एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी के साथ बातचीत की। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान हुकूमत से इजहार यकजहती किया और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी मुकम्मल तायीद की। रिहा होने वाले कई मुसाफिरों ने नई नई कहानियां सुनाई हैं। एक मुसाफिर ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्ते FC के सिपाही हमारी मदद के लिए आए। अहदेदारों ने मुतासरीन की मदद के लिए रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क कायम किया है। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद 400 से ज़्यादा मुसाफिरों को होस्टेज बनाया गया था। हमला आवरों ने बम धमाके किए और फायरिंग की, जिसके बाद ट्रेन में घुस पड़े। ये ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही थी। अलहदगी पसंदों की फायरिंग में ड्राइवर ज़ख्मी हुआ था। अहदेदारों ने बताया कि ट्रेन में तकरीबन 500 मुसाफिर सवार थे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने हमले का एक वीडियो जारी किया है। 1 मिनट और 30 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर फर्श पर बैठे हुए हैं, अतराफ पहाड़ियां हैं, बागी बंदूक बरदार वहां पर खड़े हैं और उन पर नज़र रखे हुए हैं। यह हमला रमज़ान के महीने में किया गया और तकरीबन तमाम मुसाफिर रोज़ेदार हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जेलों में बंद अपने साथियों को रिहा करने का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा है कि तमाम हमला आवरों को हलाक करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलोच अलहदगी पसंद अक्सर पंजाब और सिंध के मज़दूरों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कई मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेस और चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि बलोच अलहदगी पसंदों को बाहर के मुल्कों की मदद हासिल है। बात करते हैं यूक्रेन बहरान की। यूक्रेन सीज़फायर के बारे में अब फैसला रशिया करेगा। जद्दा में यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन ने 30 दिन के सीज़फायर से इत्तफाक किया। अमेरिका ने भी जद्दा बातचीत के साथ यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल करने का फैसला किया। जद्दा में बातचीत के बाद रशिया की वजारत ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन के बारे में फ़ैसला अमेरिका नहीं बल्कि मॉस्को करेगा। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को एक शॉक लगा है और उन्हें रशिया के स्टैंड की हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। रशियन वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने कहा कि रशियन फेडरेशन की पोजीशन कुछ फरीकों, समझौतों और कोशिशों की वजह से फेडरेशन से बाहर नहीं बल्कि अंदर तय होगी। रशिया की नुमाइंदा ने कहा कि मॉस्को जंगबंदी के बारे में अमेरिका की बाकायदा ब्रीफिंग का इंतज़ार कर रहा है। इस दौरान क्रेमलिन के तर्जुमान डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया अमेरिका यूक्रेन बातचीत के बाद की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए आने वाले दिनों में अमेरिका और रशिया के दरमियान कई राब्ते होने वाले हैं और ज़रूरत पड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत भी होगी। इससे पहले ट्रंप हुकूमत ने बातचीत के दौरान फौजी मदद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल करने का फैसला किया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका रशिया को जंगबंदी समझौते की पेशकश करेगा। रूबियो ने कहा कि हम रशियंस को बताएंगे कि क्या बातचीत हुई। यूक्रेन शूटिंग रोकने और बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। अब मानना या ना मानना रशिया पर है। सऊदी अरब ने अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान इस बातचीत की मेज़बानी की। इस बातचीत से पहले यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की।
जहां सऊदी अरब में जंगबंदी के लिए बातचीत हुई, वहीं लड़ाई में तेजी आ गई है। यूक्रेन ने रशिया के सरहदी इलाके बेलगरोड पर 64 ड्रोन्स और 54 दूसरे हथियारों से हमले किए। ये हमले पिछले 24 घंटों में किए गए। रशिया ने यूक्रेन के क्रूज के 5 देहातों पर कब्जा कर लिया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन की हुसी हुकूमत ने इसराइली जहाज़ों पर अपनी पाबंदी फिर से लगा दी है। हुसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने इसराइल की हुकूमत को गाज़ा में इंसानी मदद बहाल करने के लिए डेडलाइन दी थी, जो गुजर गई। हुसी हुकूमत ने एक बयान जारी किया और कहा कि हुसी लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी की तरफ से जारी हुक्म के मुताबिक अब हमले फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। अंसारुल्लाह लीडर ने इसराइल को 4 दिन की डेडलाइन दी थी। एक बयान में कहा गया कि हम फ़लस्तीन की अवाम की मदद के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं। 16 महीनों तक जारी गाज़ा जंग के दौरान हुसियों ने इसराइली जहाज़ों पर बेशुमार हमले किए थे। जब अमेरिका ने हुसियों को रोकने के लिए बरतानिया के साथ कार्रवाइयां शुरू की तो हुसी फौज ने अमेरिका और बरतानिया के जहाज़ों को भी अपना जायज़ टारगेट बताया और उन पर भी हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की वजह से रेड सी और खलीज अदन में जहाज़ों की ट्रैफिक मुतासर हुई थी। इसके अलावा हुसियों ने इसराइल के अंदर भी दूर दूर तक हमले किए थे। गाज़ा जंगबंदी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ दोहा पहुंच गए हैं। वो जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले पर बातचीत कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब अमेरिका हमास के साथ डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। विटकॉफ ने कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात की। पीर को उन्होंने मुसालहत की कोशिशों के लिए कतर की तारीफ की थी और कहा था कि इजिप्ट, सऊदी अरब और UAE भी मदद कर रहे हैं। इसराइली अहदेदारों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अमेरिका जंगबंदी समझौते को 2 महीनों के लिए बढ़ाने में कामयाब होगा। हमास ने अब तक जंगबंदी समझौते के सिलसिले में नई तजवीज़ों को रद्द किया है, जो पहले तय पाने वाली तजवीज़ों से बिल्कुल अलग हैं। समझा जा रहा है कि हमास अपने मज़ीद साथियों की रिहाई का मुतालबा करेगी। हमास ने भी तस्दीक की कि अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के क़तर पहुँचने के साथ ही बातचीत का एक नया दौर शुरू हुआ है। जहां एक तरफ जंगबंदी के लिए कतर में बातचीत हो रही है, वहीं इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां भी जारी हैं। पिछले 24 घंटों में इसराइली फ़ौज ने 8 फ़लस्तीनी रोज़ेदारों को शहीद कर दिया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 48,555 हो गई है। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी रखी। कई मकामात पर धावे किए गए और दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। कई घरों को गिराने की भी खबरें मिली हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका एक अरब मुल्क के ज़रिए ईरान को पैगाम भेज रहा है। मीडिया की खबरों में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बातचीत शुरू करने के लिए पहल की है और इसके लिए उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई को एक ख़त लिखा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ट्रंप ने ख़त लिखा कि एक ख़त लिखा है जिसे एक अरब मुल्क के ज़रिए ईरान तक पहुंचाया जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग के बाद तेहरान में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। इससे पहले 7 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ख़ामनाई को एक ख़त भेजा है और बातचीत की पेशकश की है। ट्रंप ने अपनी पहली सदारत में 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था। इसके बाद जो बाइडन के दौर में लंबी बातचीत हुई, लेकिन इसके बावजूद अब तक न्यूक्लियर समझौता बहाल नहीं हो सका। यूरोपीय यूनियन ने सीरिया की आरज़ी हुकूमत के नुमाइंदों को ब्रुसेल्स में बातचीत के लिए बुलाया है। ये दावत एक ऐसे वक्त दी गई है जब हाल ही में HTS और अलवी तबके के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इनमें ज़्यादातर अलवी सिविलियंस हैं। सीरिया के साबिक़ सदर बशार अल असद का ताल्लुक भी अलवी तबके से था। यूरोपीय कमीशन की तर्जुमान अनीता ने अपनी रोज़ाना की प्रेस ब्रीफिंग में तस्दीक की कि सीरिया के वज़ीर ख़ारजा असद शिबानी को दावत दी गई है और उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि सीरिया के नए हुक्मरानों के साथ बातचीत की जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने इस दौरान कहा है कि सीरिया के हालात अफसोसनाक हैं, लेकिन बाज़ अच्छे इशारे मिल रहे हैं। हमें कोई भी फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने सीरिया पर लगी बाज़ पाबंदियों को हालिया अरसे में हटाया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के दौरे के दौरान ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया के एक नए विजन का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से इलाके में खुशहाली आएगी। मोदी ने मॉरिशस को इंडिया का अहम पार्टनर करार दिया। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह इंडिया के विजन सागर से पिछले 10 साल में पूरे खित्ते को फ़ायदा पहुँचा है। इससे पहले इंडिया और मॉरिशस ने मिलकर सैटेलाइट तैयार करने और माहौलियात के शोबे में काम करने से इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस में थे। उन्होंने मॉरिशस के वज़ीर आज़म नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ पार्टनरशिप के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि तारीख़ी और तहज़ीबी एतबार से दोनों मुल्क एक रिश्ते में जुड़े हैं। दोनों लीडर्स ने यह बात मानी कि मॉरिशस और इंडिया के ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की सतह पर पहुँच गए हैं। उन्होंने बताया कि स्पेस और क्लाइमेट चेंज 2 ऐसे शोबे हैं जिन पर बातचीत हो रही है। मॉरिशस
ماریشس نے اپنا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ وزیر اعظم مودی کو پیش کیا. یہ مودی کا ایسا 21واں عالمی ایوارڈ ہے. وزیر اعظم مودی ماریشس کی قومی دن کی تقریب میں حصہ لینے کے لیے ماریشس میں تھے. انہوں نے ماریشس کے وزیر اعظم کے ساتھ ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت کی. اس بات چیت کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے تعلقات کو اسٹریٹجک سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا. مودی کو باقاعدہ طور پر ماریشس کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ پیش کر دیا گیا. اس سلسلے میں دارالحکومت پورٹ لوئی میں ایک تقریب ہوئی. مودی نے ماریشس کے سابق وزیر اعظم پروین کمار جگناتھ سے بھی ملاقات کی. بعد میں انہوں نے قومی دن کی تقریب میں حصہ لیا. 2 دن کا دورہ پورا کرنے کے بعد مودی نئی دہلی واپس ہو گئے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین, NRI, UK, US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز, 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے, AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس, پرانی حویلی, حیدرآباد. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی, گیلیکسی ٹولی چوکی, پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند, قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان. منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام. زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز, VIP معلم A اور C سروس موجود ہے. بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل, 32 دن معلم C. گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے شفٹنگ VVIP معلم A. پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A. مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس, 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے, AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں. گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے. گولڈن ٹریولز, بیسائڈ کامت ہوٹل, سیف آباد, حیدرآباد. پاکستان میں ٹرین کرائسس جاری, 190 ہوسٹیجز کو چھڑایا گیا, 30 دہشت گرد ہلاک. بلوچ دہشت گردوں نے مسافروں کو انسانی ڈھال بنا دیا, خودکش حملہ آور بھی تعینات کر دیے, ویڈیو جاری. یوکرین نے 30 دن کے سیز فائر سے کیا اتفاق, امریکہ نے انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوجی مدد بحال کی. فیصلہ امریکہ نہیں رشیا کرے گا, ماسکو کا سخت سٹینڈ, کہا بریفنگ کا انتظار ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو دھکا. امریکی نمائندے وٹکوف دوحہ پہنچے, قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات, غزہ جنگ بندی بات چیت جاری. اسرائیل نے غزہ میں 8 فلسطینی روزے داروں کو شہید کر دیا, جملہ شہادتیں 48,555. یمنیوں نے اسرائیلی جہازوں پر پھر سے پابندی لگا دی, غزہ کی مدد بحال کرنے کے لیے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد اعلان.
ڈونلڈ ٹرمپ عرب ملک کے ذریعے خامنائی کو خط بھیج رہے ہیں، ایران نے پہلی مرتبہ کی تصدیق۔ انڈیا موریشس تعلقات اسٹریٹجک سطح پر لے جانے کا فیصلہ، گلوبل ساؤتھ کے لیے مودی نے ویژن پیش کیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔